Morning, dear student. In my previous video, we discussed Mughal Empire, and today I am going to read this lesson. That is the reading part of our video. Chapter 7: Tribes, Nomad, and Settled Communities. So please open your textbook and with me read your lesson line by line. After that, I will give you explanation video. So you need to open your textbook. Open it. Now I'm going to tell. You saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. It means कि in our previous chapter 2, 3 and 4 we understand in what way the new kingdom rose, as well as we also read that how it falls. So even this was happening, new art, craft and production activities flourished in town and villages. Over the centuries, important political, social, and economical development had taken place, but social change was not the same everywhere because different kind of society evolved differently. It is important to understand how and why. It means in our previous chapter we saw a new kingdoms rose as well as fall due to some reason. In this, when this is happening in this time, there were art, craft and craft productions activities flourished in the town. ये बहुत सारे आर्ट्स हो रहे थे, प्रोडक्शंस हो रहा था, क्राफ्ट बन रहे थे, जो शहर थे उसमें से फ्लोरिश तेजी से बढ़ रहे थे. ओवर द सेंचुरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस. कहता है कि जैसे जैसे सेंचुरी गुजरती गई बहुत सारे आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक बहुत सारे परिवर्तन हुए, बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर. हर जगह सेम नहीं था. सोशल चेंजेस, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, वो एक समान नहीं था, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी इवॉल्व डिफरेंटली. क्योंकि अलग अलग तरह का जो समाज है ये अलग अलग तरीके से फ्लोरिश हो रहा था, बढ़ रहा था. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई. यही इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें क्यों पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं. In large part of the subcontinent, society was already divided according to the rule of wands. These rules are prescribed by the Brahman, were expected by the ruler of large kingdom. The difference between the high and low and between the rich and poor increased under the Delhi Sultanate and the Mughals. This hierarchy between social classes grew further. It means कि इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा यह सब कॉन्टिनेंट है, इसके एक बहुत बड़े हिस्से में जो सोसाइटी जिसे हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी कहते हैं, ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग द रूल ऑफ वंस. वंस वर्ण के आधार पे बटे हुए थे, कलर के आधार पे बटे हुए थे, कर्म के आधार पे बटे हुए थे. दीज रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स. ये ब्राह्मण्स के द्वारा सुझाया गया जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी थी, वे आर एक्सपेक्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लॉर्ज किंगडम, जो कि बड़े बड़े किंगडम्स द्वारा एक्सेप्ट किया गया. द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो
एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर, जो अंतर था हाई ऊंच और नीच में, रिच और पुअर में इंक्रीज अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स. दिस hierarchy between social class grew further beyond big city tribal societies. There were, however, other kind of society as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahman, nor were they divided into numerous unequal classes. Such society often are often called tribes. It means कि they were have other kind of society as well, कि जो प्रिस्क्राइब किए थे ब्राह्मण द्वारा वर्ण सिस्टम पे, जो रूल था वर्ण का, जिसमें अपर, लोअर, हाई, लो, रिच एंड पुअर, ये जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी कहलाती थी. इसके अलावा भी बहुत सारी सोसाइटी थी. एंड दिस सोसाइटी डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मण. और यह वह सोसाइटी थी जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए सोशल रूल्स और उनके रिचुअल्स, उनकी जो क्रियाकलाप पाखंड था, उसको भी स्वीकार नहीं किए. और जब स्वीकार नहीं किए, देन होता क्या, इसलिए इनका जो रेजिस्टेंस होता है, जो निवास स्थान होता है, जो हैबिटेट है, दे आर नॉट अलाउड टू लिव इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. सो दे live far away from mainstream society, such as in forest or in hill areas where the king or big kingdom is the not part of that territory. So nor were they divided into numerous unequal classes. और नहीं वे जैसे हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस हैं इससे डिवाइड थी, ये ऐसी सोसाइटी नहीं थी. ये न्यूमरस क्लासेस में डिवाइडेड नहीं थे. सच सोसाइटी और ऐसे ही सोसाइटी को हम कहते हैं ट्राइब्स. मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब्स वेयर यूनाइटेड बाय ए किनशिप बॉन्ड. मेनी ट्राइब obtained their livelihood from agriculture. Others were hunter-gatherers or herders. Most often, they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. Some tribes were nomadic and moved from one place to another place. A tribal group controlled land and pasture jointly and divided this amongst household according to its own rules. It means कि इनके जो members थे, जो ये different जो है classes में divide नहीं थे, बल्कि ये एक united थे by a kinship bond, जो इनकी एक पैतृक प्रेम था या बॉन्ड था, बंध था, उसके द्वारा ये बंधे हुए थे. मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर्स. अब ये बता रहे हैं कि ट्राइब्स थे क्या, तो ये ट्राइब्स जो थे ये बहुत सारे जो अपने लाइवलीहुड जीवन जीने के लिए जो चीज़ें होती थी वे डिपेंड थे एग्रीकल्चर्स पे. लेकिन ऐसा ही नहीं है. दूसरे जो थे वो हंटर गैदर्स थे या हर्डर्स थे. हंटर गैदर्स या हर्डर. मोस्ट ऑफन बहुत ये माना जाता है कि दे कंबाइन दिस एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव. ये मिलजुल के उस क्रियाकलापों को अंजाम देते थे ताकि ये नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे रहते थे उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें. सम ट्राइब्स कुछ नोमैडिक थे. नोमैडिक वो पर्सन होते हैं जिनका एक परमानेंट प्लेस नहीं होता है. They roaming here and there in search of food and pasture. तो ये मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं. ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड pastures jointly and divided these amongst household according to its
ऑन रूल्स, और अपने रूल्स के द्वारा, अपने बनाए गए नियम के अनुसार ये अपनी चीज़ों का आपसी बंटवारा कर लेते थे। Many large tribes thrived in different part of the subcontinent. They usually lived in forest, hills, desert, and places difficult to reach. Sometimes they clashed with the more powerful caste-based society in various ways. The tribe retained their freedom and preserved their separate culture. But the caste-based and tribal society also depended on each other for their diverse needs. This relationship, a conflict and dependence, gradually caused post society to change. है ना, कि देखो पहले तो ये बेचारे ब्राह्मण द्वारा बनाए गए वर्ण सिस्टम को स्वीकार नहीं करते हैं, फलस्वरूप ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं होते हैं और दूर जंगलों में पहाड़ों पे अपने यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अपनी सभ्यता संस्कृति, देखो हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती हैं क्योंकि ये बिलीव नहीं करते थे, ये इलेक्ट्रेट थे, ये पढ़ना लिखना कोई प्रिजर्व नहीं रखे हैं। हाँ, ओरल ट्रेडिशन के द्वारा ही कुछ हिस्टोरियंस ने इनको अब कलमबद्ध किया, जिसको हम पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो कहता है कि ये जो कभी कभी ये जो ट्राइबल सोसाइटी थी और कास्ट बेस्ड जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी, कभी कभी पास आ जाते थे जिसमें कॉन्फ्लिक्ट भी उत्पन्न हो जाता था। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स इनके ऊपर एक विचारों का जो है विपरीत विचार आ जाते थे, लेकिन फिर भी बोथ द सोसाइटी वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों सोसाइटी एक दूसरे पर निर्भर हो जाते थे। डाइवर्स नीड्स, अलग अलग नीड्स हैं। जैसे हमारी अगर मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अपने किंग्स की बात करें तो उन्हें एलिफेंट चाहिए होता था, उन्हें उर्स चाहिए होता था, तो ये कहाँ मिलेगा? जंगलों में मिलेगा। और इस पर अधिकार किसका है? ट्राइब्स का है। सो नो डाउट ये उन पे डिपेंड है। इस तरह से ये दोनों सोसाइटी पास आते हैं।